Yeah, very good morning to all of you. Today I'm going to discuss the last part of the chemical thermodynamics unit. In this unit, we will learn extensive properties, intensive properties, okay, types of systems, enthalpy, internal energy, work, heat, first law of thermodynamics, and heat capacity. Now, the last part of this chapter is the calculation of work for isothermal reversible expansion. So we know that consider an ideal gas equation at constant pressure P. The work done is defined as dW equal to minus PdP. The total work can be written as the integration of V1 dW from V1 to V2. Since if there is a volume change from V1 to V2, the work done is given by W equal to integration of dW from V1 to V2. That is minus V1 to V2 limit हो गया ये PdV. ठीक है. We know that from an ideal gas equation PV equal to nRT, यहाँ से P निकालेंगे तो nRT by V, क्योंकि since P is a function of pressure also. So W equal to minus V1 to V2 integration nRT by V dV. nRT isothermal है, T constant है, R is gas constant, N is number of moles, ये तीनों को बाहर कर दिया तो W equal to minus nRT V1 V2 dV by V. मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1 by V dx equal to ln x. एंड देन क्या रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन बी टू बाई वी वन. ये फाइनली यहाँ से फॉर्मूला आ गया. एल एन को लॉग में चेंज करेंगे तो यहाँ में क्या आएगा 2.303 एन आर टी. एल एन का मतलब बेस ई, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं, और लॉग का मतलब बेस 10. तो लॉग बेस 10 एल एन को जब लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 इंटू लॉग 10 वी टू बाई वी वन. ठीक है. तो सीधा सीधा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वी नो दैट dW का मतलब क्या माइनस PdV. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम V1 टू V2 क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और P की जगह पे क्या रखेंगे nRT by V. वैल्यू रख दिया, जस्ट इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे आ गया ln V2 by V1. ln को लॉग में चेंज कर लिया 2.303 nRT log V2 by V1. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए. Now for an ideal gas, we know that Boyle's law P1 V1 equal to P2 V2 since temperature is constant, so therefore one can write above equation as, so V2 by V1 की जगह पे क्या लिख देंगे ln P1 by P2. ठीक है. So same formula W equal to minus nRT ln V2 by V1. V2 by V1 की जगह पे क्या आ जाएगा P1 by P2. यहाँ से V2 by V1 करिए तो यहाँ से क्या आएगा P1 by P2 किधर लेके आएंगे तो P1 by P2, और log में चेंज कर लीजिए 2.303 to log base 10, तो 2.303 nRT log 10 P1 by P2. ये फॉर्मूला कब यूज करना है जब हमको प्रेशर चेंज दिया रहेगा. ठीक है. सो दीज आर टू एक्सप्रेशन, दैट इज W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 एंड W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 by P2. ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर Q मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. सो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W and delta E equal to 0 since isothermal process है and internal energy function of temperature only. तो ये 0 हो गया तो Q की वैल्यू क्या हो गया माइनस W. तो Q equal to माइनस W माइनस और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा 2.303 nRT log V2 by V1 और 2.303 nRT log V1 by V2. मतलब वर्क डन की वैल्यू Q की वैल्यू वर्क डन के सेम होगा, बस साइन में डिफरेंस आएगा. ठीक है. Now expression for change in internal energy, since delta E is a function of temperature only, and for isothermal process delta T equal to 0, so delta E equal to 0. Okay. Expression for change in enthalpy, we know that delta H enthalpy is defined as delta E plus delta P into V. For an ideal gas equation PV equal to nRT, तो PV की जगह पे क्या रखेंगे nRT. डेल्टा तो N is number of moles, तो डेल्टा N हो जाएगा, R is gas constant, temperature is constant क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है. सो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N R इंटू डेल्टा T. सिंस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा E इक्वल टू 0 यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, एंड डेल्टा T इक्वल टू 0 क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ से क्या हो गया डेल्टा H इक्वल टू 0. ठीक है. सो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा E मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी बोथ 0, दोनों की वैल्यू 0 होता है. ठीक है. Next, calculation of work delta E and delta H for adiabatic reversible process. This process is adiabatic, so Q की वैल्यू क्या होगी 0. Now we know that for an adiabatic process dQ equal to 0. तो first law of thermodynamics dQ equal to dE plus PdV. यहाँ से क्या लेंगे PdV equal to minus D into E. ठीक है.
नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सीवी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वीडियो में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू dE by dt. तो फॉर n मोल्स ऑफ गैस तो dE कैन बी रिटन एज NCV by dt और PdV इक्वल टू यहाँ से रख दीजिए NCV dt. ठीक है. वर्क डन इज W इक्वल टू माइनस V1 V2 PdV. PdV की वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ में रख दीजिए. तो NCV dt, NCV बाहर आ गया T2 by T1, तो यहाँ में क्या हो गया T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा T लिख सकते हैं. सो वर्क डन इन रिवर्सल एडियाबैटिक रिवर्सल प्रोसेस इक्वल टू माइनस NCV T2 माइनस T1. ठीक है. सो एडियाबैटिक है, dq 0 हो गया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dq 0 रखिए, तो यहाँ से d प्लस PdV मिलेगा. PdV की वैल्यू निकाल दिया माइनस dE. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो dE इक्वल टू NCV dt फॉर n मोल्स ऑफ गैस लिया. तो PdV की वैल्यू क्या आ गया माइनस NCV dt. यहाँ में रख के इंटीग्रेट कर दीजिए. लिमिट क्या होगा T1 टू T2, कितनी है डेल्टी, टेम्परेचर का फंक्शन है. सो माइनस NCV T2 माइनस T1. तो ये हमको मिल गया वर्क डन इन रिवर्सल adiabatic reversible process. ठीक है. Now for adiabatic process we have PV to the power gamma constant where gamma is known as Cp by Cp. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो डिफरेंशिएट करने पे ये फंक्शन मिलेगा. और डिवाइड कर देंगे V to the power gamma minus 1, we can write this one, और VdP equal to minus gamma PdV. ठीक है. For ideal gas equation for n moles of an ideal gas, PV equal to nRT. Then the complete differential of this equation will be, इसको डिफरेंशिएट करिए. सो PdV plus VdP equal to nR dt plus nt dr. ठीक है. अब VdP plus PdP plus VdP equal to nR dt plus, since R is gas constant, so dr की वैल्यू क्या हो जाएगा 0. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को कंपेयर करिए. यहाँ पे देखिए VdP क्या है माइनस गामा PdV, और यहाँ में क्या है VdP भी है. इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दीजिए इक्वेशन में. सो PdV माइनस गामा PdV इक्वल टू nR dt. यहाँ से PdV कॉमन कर लिया, तो यहाँ में 1 बचेगा, यहाँ में गामा आएगा, यहाँ में nR dt, और PdV इक्वल टू nR dt बाई 1 माइनस गामा. ठीक है. अब हमें पता है कि वर्क डन, तो कैसे मिलेगा, इंटीग्रेटिंग PdV फ्रॉम लिमिट V1 टू V2. तो इस PdV की वैल्यू को यहाँ में रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए. तो देखिए n कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट, 1 माइनस गामा कांस्टेंट बाहर कर दिया, तो dt. इसलिए लिमिट क्या लेंगे T1 टू T2. ठीक है. इंटीग्रेट कर दिया, तो nR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वर्क डन फॉर रिवर्सल एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. nR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा. गामा हमें न्यूमेरिकल में जनरली नहीं देता, हमें Cp और Cp कोई एक वैल्यू देगा, तो वहां से हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R. ठीक है. नाउ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी नो दैट फॉर n मोल्स ऑफ गैस d इक्वल टू NCV बाई dt. ये कहाँ से आएगा, डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ऑन इंटीग्रेशन, तो d इंटीग्रेट कर दीजिए. लिमिट क्या हो गया E1 टू E2, ये हो गया NCV. यहाँ में क्या होगा dt का टेम्परेचर का फंक्शन है, तो T1 टू T2. तो फाइनली डेल्टा E इक्वल टू NCV T2 माइनस T1. चेंज ऑफ इंथैल्पी इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वी नो दैट इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V. फॉर इनिशियल स्टेट H1 E1 प्लस P1 V1. फॉर फाइनल स्टेट H2 इक्वल टू E2 प्लस P2 V2. चेंज निकालिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. यहाँ से क्या मिलेगा E2 माइनस E1, एक फंक्शन है एक साथ कर लिया, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. सिमिलरली फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, P1 V1 इक्वल टू nR T1 एंड P2 V2 इक्वल टू nR T2. इसमें से इसको माइनस करिए, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू nR T2 माइनस T1. अब P2 V2 माइनस P1 V1 की इस वैल्यू को, दैट इज nR T2 माइनस T1 को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, E2 माइनस E1 इज डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 की जगह पे nR T2 माइनस T1. ठीक है. बट फ्रॉम इक्वेशन 3, डेल्टा E इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, मतलब ये ऊपर वाले इक्वेशन से. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा E इक्वल टू nR T2 माइनस T1. डेल्टा E की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए. सो डेल्टा H इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 प्लस nR T2 माइनस T1. इन दोनों में कॉमन क्या है, n T2 माइनस T1 कॉमन है, बाहर निकाल लिया. यहाँ से क्या बचा Cv, यहाँ से क्या बचा प्लस R, एंड वी नो दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R. सो Cv प्लस R इक्वल टू व्हाट, Cp. ठीक है. सो वी कैन राइट डेल्टा H इक्वल टू NCP T2 माइनस T1.
तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, फॉर इंथैल्पी चेंज इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज NCV T2 माइनस T1। यहाँ में CV आ रहा है और डेल्टा H इंथैल्पी लेंगे तो क्या आएगा, CP आएगा। तो ये पहले भी पढ़ा था हमने कि हीट गिवन टू द सिस्टम या अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वो इंथैल्पी में चेंज होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जाते हैं तो क्या में चेंज होता है, डेल्टा E में चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक, ठीक है। नाउ अब जो फॉर्मूला पढ़ा उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। So calculate the amount of work done by 2 moles of an ideal gas at 298 Kelvin in reversible isothermal expansion from 10 liter to 20 liter। ठीक है ना, तो हमको वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अंजिन जो मैथमेटिकल टर्म्स है, जो फॉर्मूला है उसमें उस वैल्यू को पुट करना है। 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू, ठीक है, तो n हो गया 2 मोल्स। टेम्परेचर कितना दिया हमको 298 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया होता तो हमें केल्विन में चेंज करना होता, ठीक है। देन वॉल्यूम कितना दिया है, फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, तो 10 मतलब इनिशियल हो गया, दैट इज V1, 20 लीटर मतलब ये V2 हो गया, ठीक है। R की वैल्यू तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाउ वी नो दैट द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो पीछे डिराइव किया, W इक्वल टू माइनस 2.303 एंड RT log V2 by V1। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, सो माइनस 2.303 n की जगह पे 2 मोल्स, R की वैल्यू 8.314 दैट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमको कितना दिया है 298 केल्विन, यहाँ में लिया लॉग, और V2 कितना था 20, V1 कितना है 10, इससे ये कट गया log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, यहाँ में रख दीजिए एंड देन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 3434.9 जूल, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, तो माइनस 3.4349 किलो जूल। आप जूल में भी लिख सकते हैं लेकिन 1000 से ज्यादा हो तो जस्ट इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना ज्यादा साइंटिफिक रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन को पढ़ना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल्स, तो n की वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया है 298 केल्विन, तो टेम्परेचर ले लिया, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स टू 20, तो व्हाटएवर जो भी वैल्यू यहाँ दिया रहेगा वो V1 टू V2, तो V1 ले लिया, V2 ले लिया, देन फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए अब यहाँ में 5 मोल्स, पीछे मैंने 2 मोल्स लिया था, यहाँ में क्वेश्चन में क्या दिया है 5 मोल्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, ठीक है। आइडियल गैस एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन, expands isothermally and reversibly from a pressure of 10 atmosphere to 2 atmosphere। देखिए अब P1 कितना हो गया 10, P2 कितना हो गया 2 atmosphere, ठीक है ना। अब आपको यहाँ में प्रेशर दिया है, तो प्रेशर दिया है तो प्रेशर का फॉर्मूला लेंगे, माइनस 2.303 NRT log P1 by P2, ठीक है। देखिए वॉल्यूम होगा तो V2 by V1 आएगा, ये ध्यान देना, V2 by V1, प्रेशर दिया रहेगा तो P1 by P2, क्योंकि बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वैल्यू रख दीजिए 2.303, n की वैल्यू 5 हो गया, r की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमको क्या दिया है 300 केल्विन, log 10 by 2, log 10 by 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। इन वैल्यू को रख के सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ में आएगा माइनस 20.075 किलो जूल, ठीक है। पहले जूल में आएगा नो डाउट क्योंकि ये जूल में है, फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल आएगा, ठीक है। सो अगर प्रेशर दिया है तो P1 by P2 लेंगे, अगर वॉल्यूम दिया है तो P2 by V1 लेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है तो आप इसको रख के सॉल्व करिए, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको आंसर आ जाता है तो नो प्रॉब्लम, नहीं आता है तो यू कैन जस्ट आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो ये था आपका टोटल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस जो भी वीडियो में लेक्चर दिया है यहाँ पे मैंने, आप इसको जस्ट एक एक पॉइंट को जाइए, सिलेबस को देखिए, टॉपिक को देखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हमने आपको ये वीडियो प्रिपेयर किया है, टॉपिक को दिया है, वहां से नोट्स बनाइए, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डाउट है, टॉपिक नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप जस्ट हमको कांटेक्ट करिए, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो मैं आपको जस्ट व्हाट्सअप कर दूंगा, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और किस क्वेश्चन में कैसे आंसर देना है,
Okay, so thank you for your watching. So, thank